کہانی آج کی بالکل. اور پہلی کہانی احمد، یہ پہلی کہانی ہمارے کراچی کا ایک علاقہ ہے تین ہٹی، کراچی پاکستان. ہاں، ٹینٹی ایک علاقہ فیمس علاقہ ہے کراچی کا. علاقہ ہے تین ہٹی. تو تین ہٹی کے بیچ میں سے ایک روڈ جاتا ہے جو جاتا ہے لزبیلا کی سائڈ. جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، کراچی میں بالخصوص، تو وہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ لزبیلا کے لیے ایک روڈ جاتا ہے. اس روڈ کے بیچ میں ایک سینما تھا جس کا نام تھا فلمستان. میں نے اپنے والد صاحب سے بہت سنا ہے اس کے بارے میں. اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1990 کی تقریباً آلموسٹ. ہاں یہی ہے. اس فلمستان سینما کے برابر سے ایک دیوار جا رہی تھی، باؤنڈری، کافی طویل باؤنڈری. اس باؤنڈری کی بیک سائڈ پہ ہے قبرستان. یعنی وہ اتنا بڑا قبرستان ہے کہ آپ اس قبرستان میں 4 گھنٹے گھومتے رہیں. اتنا بڑا قبرستان. وہ ابھی بھی ہے قبرستان. ابھی بھی ہے قبرستان. تو یہ واقعہ میں آپ کو وہاں کا بتا رہا ہوں. تو وہ جو قبرستان ہے، اس قبرستان کی جو باؤنڈری ہے ختم ہونے کے بعد وہاں پر ایک عدد مسجد ہے. اس مسجد کے اندر جو امام ہیں، یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے. مسجد کے امام ہیں وہ. اچھا. ہوتا کچھ یوں ہے احمد کہ یہ امام صاحب اپنے کسی کام سے فارغ ہونے کے بعد رات کو لیٹ نائٹ تقریباً کوئی 2-2:30 بجے کے ٹائم یہ قبرستان کے بیچ میں سے آ رہے ہیں. اب چونکہ مولوی ہیں، رات کو 2-2:30 بجے ٹوپی لگی ہوئی ہے، رومال ان کے کندھے پہ پڑا، کرتا پہنے ہوئے، اور اپنی سائیکل چلاتے ہوئے قبرستان کے بیچ میں سے وہ آ رہے ہیں. کیا ہوتا ہے احمد، جب قبرستان کا بیچ آتا ہے تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی سائیکل کے پینڈل جو ہیں وہ بھاری بھاری ہو گئے ہیں. یعنی وہ جو پاؤں مار رہے ہیں ان میں اب اس کو جان لگانی پڑی ہے مولوی صاحب کو. بیچ قبرستان میں انہیں یہ محسوس ہوا کہ یار سائیکل کے پینڈل کچھ بھاری ہو گئے. اب جب انہیں جان لگانی پڑی تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا بجائے اس کے کہ جان لگائی جائے، وہ سائیکل سے نیچے اتر گئے. اب یہ پیدل جا رہے ہیں احمد. 2-2:30 بجے کا ٹائم ہے قبرستان کے بیچ میں سے، اور یہ گزر رہے ہیں. تو انہیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ ٹھہرو، میری بات سن کر جانا. یہ مولوی نے سنا ہے اور اس نے اپنے قدم تیز کر دیے. پھر اس کو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ ٹھہرو، ہاں میری بات سن کر جانا. بجائے اس کے کہ وہ پلٹ کر دیکھتے یا رکتے، مولوی صاحب نے نکلنا بہتر جانا. وہ پلٹ کے نہیں دیکھ رہے. اب وہ کیا فیل کر رہے ہیں مولوی صاحب کہ ان کی کمر پہ کوئی ہاتھ لگ رہا ہے، جیسے کوئی انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے قبرستان کے بیچ میں. اوکے. اب وہ انہوں نے اسپیڈ ماری ہے، یعنی وہ بھاگ رہے ہیں اب سائیکل لے کے. قبرستان کراس کیا، اللہ اللہ کر کے گھر پہنچے. اب چونکہ قبرستان کے بعد جو مسجد ہے اسی کے وہ امام ہیں، تو ان کا گھر بھی مسجد کے برابر میں ہی، یعنی اجرا جو کہتے ہیں وہاں مولوی رہتے ہیں، وہیں ان کا گھر ہے. وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ اللہ کر کے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں. وہ گھر میں گئے، جا کے لیٹ گئے احمد. اب ان کی آنکھ لگی ہے. یہ کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں خواب میں وہی آواز جو قبرستان میں انہیں آ رہی تھی اسی رات کو جب یہ گھر میں گئے ہیں، جا کے لیٹے ہیں، آنکھ بند ہوئی ہے، ان کی آنکھ لگی، اور انہوں نے خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا کہ ٹھہرو، میری بات سن کے جانا. کوئی شکل نہیں آئی خواب میں، کچھ نہیں آئی. ہاں یہ خواب دیکھ رہا ہے مولوی. خواب میں اس سے وہ بات کر رہا ہے کہ میں نے تم سے کہا کہ رکو، تم رکے نہیں جبکہ تمہیں رکنا چاہیے تھا. مولوی کی آنکھ کھلتی ہے، ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ گیا. اس نے بولا یار یہ کون سا خواب ہے؟ تھوڑی دیر سوچتا ہے کہ ہاں یہ تو میرے ساتھ قبرستان میں آواز آ رہی تھی ابھی مجھے. خیر اللہ اللہ کر کے یہ سو گیا. دن گزرا، دوسرا دن ہوا. وہ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد حسب دستور وہ سویا ہے احمد. اب جب یہ سویا ہے تو دوسرے دن بھی رات کو اس کو وہی آواز جو اس کو پہلے دن آئی تھی کہ تم نے میری بات کو رد کیا، میں نے تمہیں آواز دی اور تم رکے نہیں. مولوی اب خواب میں اس سے ہم کلام ہیں یہ دونوں. اچھا. خواب میں بات ہو رہی ہے. مولوی نے اس سے کہا کہ میں تو تمہیں دیکھ نہیں پایا، تمہیں رکتا کیسے؟ کہتا ہے تم نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میں تمہیں دیکھ رہا تھا. جب میں نے تمہیں روکا تو تم رکے کیوں نہیں؟ کہتا میں رکتا کیوں؟ کہتا میں تمہیں روک رہا تھا، اس کی کوئی وجہ ہے. اس کی کوئی وجہ ہے یہ کہ تم ایک مولوی ہو، اللہ کے خاص بندے ہو. ہاں. تو میرا یہ کام تم کرو گے. وہ کہتا ہے کیسا کام؟ کہتا ہے مجھے ایک نامعلوم لاش کہہ کر
इस कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। एक सेकंड, ये जिसने आवाज लगाई है मौलवी साहब को, वो उसी कब्रिस्तान का एक मुर्दा है? मुर्दा है जो वहां दफन है। वो ख्वाब में मौलवी से कह रहा है कि मुझे लावारिस लाश समझकर इस कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। तो वो कहता है दफना दिया गया है कितने दिन पहले? कह रहा है 4 दिन पहले। 4 दिन पहले मुझे इस कब्रिस्तान में दफनाया गया है और तुम आओ, आके तुम पहले तस्दीक करो और मेरी कब्र देखो कि 4 दिन पुरानी वो कब्र है। अब वो अपनी कब्र का उसे पता बता रहा है। कौन? वो जो ख्वाब में, ख्वाब में जो आया। कहता है जैसे ही आप गेट से अंदर आएंगे, गेट से अंदर दाखिल होने के बाद चंद कदम की मसाफत पर 2 संगमरमर की कब्रें बनी हुई हैं। वो संगमरमर की जो 2 कब्रें हैं उनके बिल्कुल पैर वाले साइड पर, यानी मेरी कब्र है। तख्ती कोई भी नहीं, क्योंकि मुझे नामालूम समझ के दफना दिया गया है। मौलवी उठा। दूसरे दिन सुबह हुई। हाँ। अब ये सुबह जब हुई है तो दिन में ये गया है कब्रिस्तान। कौन? वो मौलवी। वो मौलवी कब्रिस्तान गया है उस कब्र को देखने के लिए कि जो रात को उसने उसको बताई है। अब मौलवी वो उस गेट से इंटर हुआ है, उसके बताए हुए पते पर जैसी वो गया है, उसने वहां जाके देखा, तस्दीक की है, तो वो कब्र वहां है। वो कब्र वहां मौजूद है कि 4 दिन पुरानी कब्र है। वो लग रही है कि इसे 4 दिन हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए। मौलवी उस कब्र के पास खड़ा हो गया है और सोचता है यार बात तो बिल्कुल सही कही है उसने, कब्र तो ये 4 दिन पुरानी है। वो गौरकन से उसको कंफर्म करता है, कहता है ये जो कब्र है ये कितने दिन पुरानी है? वो कहता है खैरियत मौलवी साहब? कहता नहीं मैं पूछना चाह रहा हूं। कह रहा अभी 4 दिन हुए। कहता बस यही पता करना था। मौलवी वापस अपने घर गया। तो अब कंफर्म हो गई, उसकी कंफर्म हो बात गया सच कि है। ये वही कब्र है जो मुझे रात को उसने बताई है। हाँ। मौलवी घर गया, सोया अहमद। अब सोया है तो रात को फिर ख्वाब में वही शख्स उसके ख्वाब में आया है कि मुझे खुशी हुई ये देख कर के तुम मेरे पास से होकर गए। वो मुर्दा कह रहा है उस मौलवी से कि तुम मेरे पास से होकर गए, अब चूंकि तुम यहां तक आए हो तो मेरे लवाहिकीन जो हैं उन तक मेरी इत्तला पहुंचाओ किसी भी तरीके से कि मेरी मौत हो चुकी है। क्यों? कि मेरे घर वाले मुझे जिंदा समझ रहे हैं। ओके, यही काम है उसको शायद मौलवी से, यही काम है। तो कहता है कि मेरे घर वाले मुझे जिंदा समझ रहे हैं। हाँ। क्योंकि मैं पंजाब से यहां कराची काम करने के लिए आया था और एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई, जो नामालूम समझकर इन लोगों ने मुझे यहां दफना दिया। अब ये मौलवी और वो दोनों हम कलाम हैं ख्वाब में। मौलवी कहता है मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे घर को मैं इत्तला कैसे दूं? ख्वाब में वो उसको तमाम पता बताता है, पंजाब का वो एड्रेस जहां उसके घर वाले रहते हैं। मौलवी को उसने वो ख्वाब में पता बताया है। अब उस पते पे दूसरा दिन हुआ अहमद। उस पते पे मौलवी साहब ने खत लिखा। हाँ। खत भेजा, क्योंकि मोबाइल का दौर नहीं है, मोबाइल नहीं है, पीसीओ का दौर है, यानी टेलीफोन एक जगह लगा हुआ है तो पड़ोस से भी बता रहे हैं कि भाई आपकी कॉल आई है, तो पड़ोसी आके बताएगा तो वो कॉल सुन। यानी मोबाइल इतने आम नहीं थे उस वक्त कि हर सबके पास हो। बिल्कुल नहीं। अब जब मौलवी साहब ने वहां खत लिखा तो अहमद 1 महीने के बाद उस खत का जवाब आया मौलवी के पते पर। मौलवी ने जब खत रिसीव किया है, खत खोला है, तो खत में उसके जो घर वाले हैं, उसके जो लवाहिकीन हैं, वो मौलवी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और उन्होंने खत में यह लिखा कि ये एक टेलीफोन नंबर्स है जो हम लिख के भेज रहे हैं, ये वो नंबर है जो हमारे घर के पड़ोस में एक जनरल स्टोर है, करियाना स्टोर है, से निकल गए। अब मौलवी रात को हस्बे दस्तूर वापस आ रहा है। कोई 3 बजे का टाइम है। उसी रात दिन में घर वालों से मिलाया, कब्र से फारिग किया, अपने काम से चला गया। अब रात को ये वापस आ रहे हैं मौलवी साहब कब्रिस्तान के बीच में से। 3 बजे का टाइम है। ये कब्रिस्तान में दाखिल हुए हैं तो क्या देखते हैं अहमद कि पूरा लंबा रास्ता। अब मौलवी साहब के दिमाग में वो बात है कि एक काम मेरे से दिन में हुआ है जो अल्लाह की रजा के लिए मैंने किया है। हाँ। ये मौलवी साहब कब्रिस्तान में दाखिल हुए, अब जा रहे हैं। इन्हें क्या महसूस होता है कि कोई हाँपता हुआ इनके पीछे आ रहा है, जिसकी सांस आ रही है, हाँपता हुआ कोई भागता हुआ इनके पीछे आ रहा है और कहता है कि ठहरो ठहरो ठहरो। मुसलसल आवाजें आ रही हैं और मौलवी साहब ने अपनी स्पीड बढ़ाई है।
क्या महसूस हुआ इसको कि सांसें चल रही हैं। तो क्या देखते हैं मौलवी साहब कि अल्लाह की करामत देखिए कि इसी असना में एक सफेद कलर की चादर आती है अहमद, एक वाइट कलर की चादर आती है, पूरी चादर सफेद, जो मौलवी साहब के सर से होती हुई उस कब्रिस्तान की बाउंड्री तक चली गई है जहां वो कब्रिस्तान खत्म हो रहा है। पूरी सफेद चादर, जैसे किसी ने तंबू बांध दिया हो, जैसे किसी के इस्तकबाल किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उस चादर के नीचे, मौलवी साहब उस चादर के नीचे से जा रहे हैं और पढ़ाई करते हुए जा रहे हैं। वो कब्रिस्तान उन्होंने जो क्रॉस किया है उस चादर के नीचे क्रॉस किया है अहमद। यानी वो कब्र वाला इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर जब मौलवी साहब घर पहुंचे हैं, हस्ब दस्तूर वो सोए हैं। सोने के बाद जो उन्हें ख्वाब आया है, उस ख्वाब में उसने उन मौलवी का शुक्रिया अदा किया है कि आप में इंसानियत है, आप इंसान हैं, आपने मेरा वो काम किया है जो कोई भी नहीं कर सकता था, और ये काम मैंने आपसे कराना था, और अल्लाह आपसे राजी हो। क्या बात है, क्या बात है। तो इस कहानी का जो कंक्लूड अगर करें तो ये है कि एक लावारिस लाश, बल्कि लावारिस नहीं थी, लावारिस समझ के दफना दी गई। लावारिस तो उसके आ गए थे ना। हाँ, क्योंकि लावारिस इसलिए कि उनको नहीं पता होगा, और 1990 में इतना मोबाइल था नहीं कि पता लगे लाश किसकी है। कराची में आया था पंजाब का यहाँ आके उसका इंतकाल हुआ। इंतकाल भी यूं हुआ कि बताने वालों ने बताया वो कराची आया था कमाने के लिए, हाँ, लेकिन एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। अब जब जान चली गई तो तुम्हें यहाँ के माहौल का मालूम है अहमद, हाँ, कि लोग जो बचाने के लिए आते हैं, हाँ, वो बचाते कम और लूट ज्यादा लेते हैं। अल्लाह, वो उसकी जेब से जो कुछ था वो सब निकाल के ले गए, उसका कुछ भी नहीं बचा जो उसके लवाहिकीन का पता चल सकता था। ये काम सिर्फ उस मौलवी के तवस्सुत से हुआ, जो उसने खुद उस मौलवी से ये काम कराया। क्या बात है। अल्लाह हमारे हालों पर रहम करे। और कहानी जो भी हो, हाँ, लेसन बड़ा अच्छा था। बिल्कुल ऐसे, काम आना एक दूसरे के जरूरी, चाहे आप जिंदा हैं या फिर आप इस दुनिया से चले गए, बिल्कुल ऐसे, आप काम तो आ ही सकते हैं किसी के। ऐसे। शेख साहब, बड़ी कमाल की कहानी थी, बड़ा मजा आया। हाँ, थैंक यू। और अब दूसरी कहानी शेख साहब स्टार्ट कर। ये एक लैंडलॉर्ड लड़का है, बड़ा खाते पीते घर का बच्चा है। होते ना लड़के टूर पे निकलते हैं जी, कराची टूर पे, पाकिस्तान टूर पे निकल गए। हाँ, तो ऐसे ये 4 दोस्त प्लान कर रहे हैं, हाँ, कि पाकिस्तान टूर पे जाएंगे। अब इन्होंने 4 दोस्तों ने प्लान किया है, क्या प्लान किया है कि ये मरी जा रहे हैं। मरी का प्लान किया है कि हम मरी चलेंगे, सारे घूमते फिरते हुए जाएंगे। अपनी गाड़ी वाड़ी ली हुई है बेहतरीन, गाड़ी में 4 यार दोस्त को बिठाया है। अब ये निकल गए कहाँ? मरी के लिए जा रहे हैं। रास्ते में हंगामा आ रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तफरी वफरी हो रही है, जो यंगस्टर लड़के होते हैं वो तुम्हें करता हो, तुम्हें पता है। बहरहाल अलकिस्सा मुख्तसर मरी पहुंच गए हैं अहमद। मरी के होटल में रूम लिया है बेहतरीन, रात भर एंजॉय किया है। रात के 2 बजे इसको फोन आता है घर से, जो लड़का अपने दोस्तों को लेके गया है, हाँ, उसको कॉल आई। फोन रिसीव करता है तो इसके घर से कॉल है, और घर से इसको मैसेज क्या मिल रहा है फोन पे, क्या कि आपके वालिद की डेथ हो गई है, आप जिस हालत में भी हैं फौरन रिटर्न हो जाएं। वालिद की डेथ हो गई। अब बाप का मर जाना, हाँ, उसने वो सारी चीजों को रद्द किया है और अपने दोस्तों को बोला कि मुझे तो जाना पड़ेगा। वैसी बात है, वालिद की। बिल्कुल, उसने बोला मैं निकलूंगा, अगर आप लोगों ने रुकना है तो रुके। तो दोस्त यार कहते हैं यार हम तो अभी आए हैं और तू जाने की बात कर रहा है। बोला मेरा बाप मरा है। कह रहे हाँ ये तो है कि तुझे जाना पड़ेगा। और किसी का बाप मरा तो फिर कौन रोक? बहरहाल अहमद उसने सारा सामान जो भी था अपना समेटा और फौरन गाड़ी की तरफ निकला। गाड़ी को सलफ मारा और वहां से स्पीड मारी उसने वापसी के लिए, यानी घूमे फिरे कुछ नहीं है। दूसरे दिन ये रिटर्न हो गया। अब ये मरी से निकले हैं, मंडता हुआ जा रहा है, हाईवे चढ़ा, मंडा हुआ है बुरी तरीके से, क्योंकि इसको घर पहुंचना है, बाप का इंतकाल हुआ है। स्पीड मारी हुई इसने, इस्लामाबाद क्रॉस किया, पटा हुआ है। अब सखर तक ये पहुंच गया है। सखर पहुंचने के बाद थोड़ा सा कच्चा आ गया तो एक छोटी सी बस्ती है अहमद, छोटा सा एक गांव है, वो जो हाईवे से थोड़ा सा बीच में आता है। तो छोटा सा कच्चा आया है, मुख्तसर से लोग, वहां छोटी सी आबादी। क्या देखता है कि अब ये आबादी में स्पीड तो मारने से रहा, लेकिन ये गाड़ी कोशिश कर रहा है कि मैं निकलूं। तो क्या देखता है कि उसी बस्ती में से एक आदमी साइकिल से
स्लो पैंडल मारता हुआ इसकी गाड़ी के आगे आ गया है Fast और track वो पे आगे। फास्ट ट्रैक पे आ गया। अब ये उसको हॉर्न मार रहा है। उसने थोड़ी सी गाड़ी साइड में की है, ये उसके बराबर में गया है और उसको अपना शीशा उतार के उसको वो डांटता है कि तुझे तमीज नहीं है, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज। तो वो जो साइकिल चला रहा है उसने बोला मैंने आपसे क्या कहा, ये साइकिल चल रही है, गाड़ी चल रही है, दोनों की बातें भी चल रही हैं, दोनों की बातें चल रही है कि मैंने आपसे क्या कहा। कह रहा मैं इतनी देर से हॉर्न मार रहा हूं, तुझे आवाज नहीं आई, बहरा है। कह रहे देखें आप ये बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ, बोला बकवास बंद कर। वापस शीशा चढ़ा, फिर मंडा, स्पीड मारता है। अब जहां ये बस्ती छोड़ता है 20 की स्पीड से फिर ये 40 पे आ गया। अब 40 की स्पीड में जब ये आया है तो क्या देखता है अहमद कि वही साइकिल वाला इसके बराबर में आ गया है। इसने साइड से देखा कि ये मेरे बराबर में है। इसने हल्का सा शीशा उतारा, बोला क्या हुआ, बोला देखे आपने मेरे साथ ज्यादती की है। साइकिल वाला कह रहा है, साइकिल वाला उससे कह रहा है कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है। ठीक है आप हॉर्न मार रहे होंगे, लेकिन आपने जो मुझे गालियां दी है, जो आपने मुझे बेइज्जत किया, ये आपका हक नहीं बनता। वो कहता बकवास बंद करो, दफा हो जाए यहां से, तुझे पता नहीं तू किससे उलझ रहा है। शीशा चढ़ाता है, स्पीड मारता है। अहमद 80 की स्पीड मार दी इसने। अब ये पटा हुआ है, क्या देखता है कि 80 की स्पीड मारने के बाद वो साइकिल वाला फिर उसके बराबर में आ गया है। एक सेकंड, पहले 40 की स्पीड पे भी साइकिल वाला इसके साथ, बराबर में था, अब इसने 80 की स्पीड मारी है, फिर साइकिल वाला फिर बराबर में आ गया, फिर बराबर में है। ये उसको देखता है, इशारा करता है क्या हुआ। वो उससे कहता है कि शीशा नीचे कर। वो शीशा नीचे करता है, कहता क्या है, कहता है आप मुझसे माफी जब तक नहीं मांगेंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बोलता है तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तुझसे माफी मांगूंगा, मैं चला जा यहां से वरना मैं तुझे इतनी दूर फेंक दूंगा कि तेरा नाम और निशान मिट जाएगा। अच्छा ये बाप के गम में इतना वो था कि वो 80 की स्पीड सब में कुछ भूल गया है। वो इसके साथ आ रहा है साइकिल पे, साइकिल पे आ रहा, उसको कुछ गुमान में नहीं है कि ये साइकिल पे 80 की स्पीड मैंने मारी हुई है, ये साइकिल पे कैसा, कुछ ख्याल नहीं है। वो सिर्फ उससे टॉकी में लगा हुआ है। कहता दफा हो जाए यहां से, फिर मंडाया, 100 मार दी, 120 मार दी। 120 मारने के बाद अहमद क्या देखता है कि वो साइकिल वाला फिर उसके बराबर में है। 120 की स्पीड पे वो जो गांव से शख्स निकला था वो साइकिल चला रहा है, बिल्कुल, और वो उसके बराबर में है। ये इसको देखता है, अब इसको तजस्सुस हुआ कि मैं तो कांटा 120 पे मारा हुआ है, ये साइकिल वाला मेरे बराबर में क्या कर रहा है। उसने हल्का सा शीशा नीचे किया, बोला क्या चाहता है, बोला क्या चाहता हूं। साइकिल वाला कह रहा है क्या चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मुझसे अपने किए की माफी मांगे तो यहां से चले जाएं, और अगर माफी नहीं मांगेंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इसके दिमाग में ख्याल आता है कि ऐसी क्या बात है जो इतने वसूख से मुझसे ये बात कर रहा है। इसने कुछ नहीं देखा अहमद, इसने मजीद स्पीड मारी, स्पीड मार के 180 पहुंच गया है, मंडा हुआ है। अब जब देखता है तो ये साइड ग्लास में इसने देखा कि वो नजर नहीं आ रहा, दूसरे साइड ग्लास में देखा वहां भी नजर नहीं आ रहा। इसने सुकून का सांस लिया कि शायद अब वो ना हो। अब जैसे ही ये फ्रंट पे देखता है अहमद, तो फ्रंट पे वो साइकिल वाला उसके आगे आगे जा रहा है। साइकिल वाला उसके आगे 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 है। कितनी स्पीड पे, 180 की स्पीड। 180 की स्पीड मारी हुई है इसने। तो अब ये समझ गया होगा कि ये कोई और इसके दिमाग में ये बात आ गई अहमद कि ये जो साइकिल पर शख्स है जिससे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये कोई और है, इंसान, ये इंसान नहीं हो सकता। क्या देखता है कि वो आगे से उसको इशारा करता है कि रोक, गाड़ी रोक। वो गाड़ी तो क्या ही रोकता है अहमद, वो उसके बराबर से गुजरने लगता है। अब जैसे गुजरने लगता है तो वो उसको इशारा करता है दोबारा कि जब तक, शीशा उतारा इसने, वो कहता है तुम मुझसे माफी मांगे बगैर यहां से जा नहीं सकते। अब चूंकि इसकी समझ में आ गया है कि हां ये कोई और है, ये इंसान नहीं है, इसने चलती गाड़ी में उससे कह रहा है कि देखो मुझसे जो भी कुछ हुआ, ये दोनों मंडे हुए हैं, एक ही स्पीड में है, 180 पे गाड़ी जा रही है और साइकिल वाला इसके बराबर में है, और बात हो रही है अहमद
साइकिल वाला इससे कह रहा है, क्या तुम्हें अपने किए का एहसास नहीं? वो कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। क्यों? कि मेरे वालिद की डेथ हो गई है, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। मुझे सिर्फ घर पहुंचना था। जो मैंने तुम्हें डांटा, जो मैंने तुम्हें बोला, जितनी भी बातें मैंने तुमसे की, उसके लिए मैं तुमसे माजरत चाहता हूं। वो कहता है, ठीक है, तुम अपनी मंजिल की जानिब और मैं अपनी मंजिल की जानिब। वो शीशा चढ़ाता है तो क्या देखता है अहमद? 180 की स्पीड पे तो ये था, और वो जो साइकिल वाला है, वो कितनी स्पीड में इसके आगे से निकला होगा कि जो 180 को क्रॉस करके जब करके साइकिल से निकला है और आगे जाके ओझल हो गया है। ये शुक्र मनाता है, कंफर्म है कि वो इंसान नहीं है। इंसान क्योंकि नहीं है। साइकिल की स्पीड तो मेरा ख्याल बहुत ही कम कितना होती है। पेंडल मार लेगा कोई? कितने पेंडल मार लेगा। हाँ? और और कितनी स्पीड मार लेगा कोई भी साइकिल पे? अच्छा, अब आप ये भी देखें कि जब इसकी लड़ाई हो रही थी उससे, तो इसने ये भी नोट नहीं किया, बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि ये मेरे बराबर में तो साइकिल लेके आया हुआ है। लेकिन जब वो क्रॉस उसने किया 120, बिल्कुल, तब उसे एहसास हुआ कि ये साइकिल 120 की स्पीड पे कैसे चल रही है। कैसे चल गई है। ओह, 180 मारने के बाद 180 उसको ये एहसास हुआ कि नहीं, ये साइकिल कोई और ही चला रहा है। कोई और मखलूक है। तो कहते हैं अहमद कि अगर अपने किए पर पशेमान हो जाओ, हाँ, जो तुमसे गलती हो गई, उसको एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर लेनी तो चाहिए। बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाती आसानियां पैदा हो जाती हैं। और क्या ही अच्छा होता कि उसके पहली दफा कहने पे ही, शुरू में ही माफी मांग लेता। क्योंकि अगर किसी ने गलती की भी है, हाँ। लेकिन आप उसको गरीब, इस गरीब बेकार इस तरह धुतकार रहे हो, धुतकारना नहीं, तो इस तरह उसकी नदामत तो नहीं होगी उसको, बल्कि वो उल्टा और ही आपका दुश्मन बिल्कुल जाएगा। ऐसे। और यही इस कहानी में हुआ। बजाय इसके कि वो उसको कोई नुकसान पहुंचा देता इतने गैप में, इतने गैप लेकिन उसने उसी बात पे अटल रहा कि तुम सिर्फ मुझसे माफी मांग लो और चले जाओ। हाँ, क्योंकि जो 180 की स्पीड पर साइकिल चला सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल।